सब कोई ज्वाइन हो जाओ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के वेट करते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट होगा। নিজের কোনো প্রবলেম হয়ে যায়, আপনার যেন কম্পিউটারটা না পড়ে আপনার ওই রিকোয়েস্টটা দিয়ে দেন। পাবেন পাবেন না কেন? আপনি আমাকে এই টাস্কটা এ করো, তুমি একটা এ করে আমাকে। Hello, good afternoon to everyone. Hello students. Hello. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. If you are fine and have filled up your form, Yes, ma'am. form you already. Yes, ma'am. Okay. Now I think your courses have already been finished in all subjects, even in lab. What about yours?
from your side, your response. How much courses you have covered in every subject? I'm almost done. And if you are asked to face any sorts of online examinations, then you are ready? Hello? Please give reply. Are you ready to face any sorts of online examinations? Hello? सबको ही रेस्पॉन्स करो, मैडम पूछ रहे तो रेस्पॉन्स करो, उसके ऊपर भी हम लोग अटेंडेंस देंगे। बिना ऑन करके बैठे रहोगे उसका अटेंडेंस हम नहीं देंगे। रेस्पॉन्स करो सबको। हेलो, Yes, ma'am. एक ही only one Yes. girl is there. What about boys side? Hello boys. Hello. अरुण रिप्लाई करो, अरुण कुमार रिप्लाई करो, मैडम जो बोल रही है। अरे ये सब हम लोग को जरूरी है जानना, इसीलिए हम पूछ रहे हैं, फीडबैक लेना है आप लोग से। नहीं ना पूछ रहा है, मेरा तो क्या फायदा पूछ। यूनिवर्सिटी किसी तरह का ऑनलाइन एग्जाम का। So that I have not heard your voice. What? If university immediately conduct. Hello. Ma'am, we have some difficulties in some particular subjects. Yes, ma'am. And तुरंत तो नहीं दे सकते, but obviously कुछ दिन में prepare करके अच्छे से तो दे। अच्छा, you need some time. Yes, ma'am. And mainly in Yes. your, Yes, ma'am. so I think you should be fully dedicated in your preparation, and you have to fully be involved in your study till university is not giving any final information regarding how you will promote in your next semesters. Okay. Please go through your syllabus-based books, chapters, and even class notes. What you already have learned, and everything is, I think, regularly it is uploaded in video form or YouTube. So you should be till final information you are not getting about your next semester promotions, how you will be promoted, and what about the decision finally would be by the JOT. You should spend your time during this period of time as a examinee, and you should fully be involved in your preparation only, like you when you were in offline mode. Obviously, after completion or after form fill up, you just feel yourself as an examinee, like that, because any decision can be taken by JOT. Now, actually, this period is your practical period, and I think Surajit sir already have informed you to prepare your lab copy and to submit it in online. So I'm asking you a few questions. Actually, first question is, how many lab till now in the subjects you already have covered? कितने लैब आप आज तक आपको थ्रू वीडियो ही राइट, but you have covered? Any student can reply? Ma'am, 6. 6. Okay, very good. Next student can. Any 2 students just complete what are the names of that experiment? Any 2 student, if single student is not remembering fully, then just take the help of 2 and say to me what are the
Name of those 6 experiments which you already have covered. Amplitude modulation, frequency modulation. Yes. Yes, ma'am. Amplitude modulation and demodulation, frequency modulation and demodulation. Very good. 4. Then another 2. Another 2. Who can say? Hello? Actually, I am taking today your one kind of viva. Okay, so you have to say, otherwise you will lose your marks. If you don't know even what you have taught in your class, how many experiments, and first step is you must be aware about the name of your experiments, and if anyone cannot say that correctly, then you will lose your marks. So just anyone complete other 2 name. बोलो 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 बोलते बोलो. कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ है? और अनदर 2, 4 तो बोल दिया है. हाँ, उसका 6 नाम नहीं बता पा रहे हो, ऐसे की है इसके 7 नाम बोल रहे हो. रिप्लाई क्विकली. तो हम यही करेंगे कि 6 में 4 का एक्सपेरिमेंट का जो हर एक एक्सपेरिमेंट में नंबर है, तो हम 2 का मार्क्स डिडक्ट कर देते हैं और 4 में जितना जिसका होता है उसका नंबर दे देते हैं. 6 एक्सपेरिमेंट का नाम तो बोलो. अरे अनदर Sampling and construction. यस बोलो ना, देख के ही बोलो ना. सैम्पलिंग टेक्निक. वेरी गुड. एंड नेक्स्ट वन मोर. लास्ट डे जो हुआ है, लास्ट डे का पता नहीं है आज. अपने पास तो कुछ तो होगा डॉक्यूमेंट्स, उसको देख के बोलो. हेलो, लास्ट डे जो पढ़ा है उसका नाम बोलो. এরকম কেন স্টুডেন্ট কথা শুনে না? কি অবস্থা? लास्ट डे जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसका नाम तो कम से कम बताओ. এই ছেলেদেরকে জিজ্ঞেস করো তো, ছেলেদের নাম দিয়ে ওরা নেই মনে হচ্ছে, লাগিয়ে দিয়ে চলে গেছে. জিজ্ঞেস করো. अंकित कुमार सिंह, हम अटेंडेंस ले लेते हैं अभी. ऐसे कॉल करेंगे जो यस सर. सर मुझे 5 पता था सर. मैं तो क्या सर? सर मुझे 5 पता था, तो मैं तो 1 बोला, और बाकी मुझे लास्ट का तो मैं आया नहीं था, तो मुझे नहीं पता सर. बाकी 5 मुझे पता है. अनुष्का कुमार, क्या है? अनुष्का कुमारी है क्या? धीरेन्द्र बोलो. धीरेन्द्र कुमार. धीरेन्द्र कुमार बोलो. Who can say the last name will get 10% extra marks? এটা কোন ব্যাচ? 20-23 এই অবস্থা কেন? প্রশ্ন করে না? ওরে কিছু 2-4 জনের রেসপন্স করে. জিজ্ঞেস করো. अरे लास्ट डे जो हुआ था. Ma'am, study of PM and TDM. ma'am. PM and TDM. PM के PM बोलते हैं. PAM TDM. Yeah, सर बोले तो PAM and TDM. Ma'am, pulse amplitude modulation or time division modulation. Pulse amplitude modulation and Multiplexing. time division multiplexing. Okay. Okay. Multiplexing, Next ma'am. questions. My next question is, who can say what is sampling? What is sampling? Don't be afraid. If anyone know, it is a group viva. Don't be afraid. Don't be silly. Don't be ashamed. कोई ऐसा नहीं है कि शर्म का बात है. ये अगर कोई जानते हो बोल दो. All will get the marks. Group viva ले रहा है.
What is sampling? मैम सैम्पलिंग एक मैम हाँ, इंग्लिश हाँ। में बोले या हिंदी में कंफर्टेबल है आप बोल सकते हाँ, हैं। जिसमें भी कंफर्टेबल, क्योंकि ये लैब का मतलब होता है कि आप समझ रहे हो कि नहीं हो रहा। भाषा तो बाद में आता है। बोलिए, आप बोलिए, बोलिए हिंदी में। मैम सैम्पलिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। That means you have understand, ठीक है। Actually sampling क्या है कि to select some part of any continuous signal, and the technique which you are following to generate such type of selection, that is called sampling. Generated part is called sample and technique is sampling. You have understand that what is sampling. Now my next question, when Suroji sir have shown you through his video the generation process of sampling of some signal, so what are the different devices or what are the arrangement he has shown using different devices? What are the different part of arrangement? Just name. Who can say? Hindi, English, किसी में भी बोलिए, but आप बोलिए, so that we can be confirmed about your understanding only. क्या आप समझे है कि नहीं समझे उसको? कोई बोलिए कैसा अरेंजमेंट किए थे, उसमें कौन कौन सा पार्ट? हाँ, देख के ही बोलिए ना, आप कहीं तो आपका रिकॉर्ड रखे हैं ना, उसको देख के आगे। मैम आपका वॉइस बहुत कट रहा है। हेलो, मैम आपका वॉइस बहुत कट रहा है बीच बीच में। अच्छा, अभी सुनाई दे रहा है? Am I audible? Am I audible? हेलो, यस मैम अभी ठीक है। जब आप बोलते हैं ना तो बीच में कट जाता है तो समझ नहीं, अभी आप सुनिए, हम बोल रहे हैं कि आपका जो सैम्पलिंग प्रोसेस को करने के लिए जो वीडियो में आपको लैब दिखाया गया है, उस लैब में सर ने क्या क्या पार्ट यूज किए थे। आई मीन 2-3 ब्लॉक डायग्राम में 2-3 पार्ट करके तो उन्होंने दिखाया। तो व्हाट आर द नेम ऑफ दोज पार्ट्स? जस्ट से and anyone can say it. Am I audible now? Hello? Am I audible? Yes, yeah, ma'am. आप लोग कहीं लैब रिकॉर्ड बनाए तो उसको देख के आराम से बोलिए, देख के ही बोलिए। ब्लॉक डायग्राम को धीरे धीरे बोलो। ब्लॉक डायग्राम में तो हाँ है सब कुछ। ब्लॉक डायग्राम धीरे धीरे बोलो, कौन सा पार्ट यूज हुआ, देख के ही बोलिए उसको। शुरू है तो परीक्षा ना। बोलते बोलो। अरे ब्लॉक डायग्राम को बोलो, कौन ब्लॉक में क्या क्या था। समझ मैंने क्वेश्चन मैडम यही पूछना चाहते हैं, हम लोग उधर क्या क्या यूज किए, फिल्टर अरेंजमेंट जो किए उसको, उसमें कॉपी खोल के देख के बोलिए ना। ब्लॉक डायग्राम पता है ना, सर्किट डायग्राम एक होता है, ब्लॉक डायग्राम होता है। ब्लॉक डायग्राम को बताओ कि मैडम हाँ हम लोग यही यूज किए। সেই 4:30 শেষ হবে তো, আমি আসছি একবার দেখা করি, তবে বেরিয়ে যাবো, ডিসি অফিস যেতে হবে।
अरे फिल्टर यूज किए हो कि नहीं किए हो, मॉड्यूलेशन पार्ट कुछ यूज किए हो कि डिमॉड्यूलेशन यूज किए हो कि दूसरा कुछ यूज किए हो, वो बोलो। एक दो तो बोलो, पूरा नहीं भी पता, एक दो बोलो। अगर तुम लोग डरो मत कि मैडम गलत हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं बोलोगे तब भी नोट्स नहीं मिलेगा, गलत होगा तब तो कुछ सीखोगे कम से कम। देख देख के बोलिए ना, कहीं से देख देख, कहीं रिकॉर्ड रखे हैं ना सर जो बना है, फोटो रखे हैं या क्या है, उसको देख देख के बोलिए। अगर एक भी बच्चा नहीं बोलेगा तो मार्क्स कट जाएगा आपका। बोलिए, वो देख एक देख के दो बोलिए। पता है वो तो बोलो, हम तो इसका खुद का वीडियो बनाते दिस इज हैं। ए ग्रुप भाई बाप, बोलिए आप लोग, डरिए मत। এইরকম কি করে হবে, পড়াশোনাই করে না। হ্যালো স্টুডেন্ট, কেটে গেল নাকি? বলতে বলো না। अच्छा, you already have prepared your lab record as per the instruction of sir Surajit sir? ও হতে পারে কেউ তৈরি করেনি এখনো। এদের সঙ্গে কথা বলে বাবা আমি পাচ্ছি না, এই কিরম পড়াবো। হ্যাঁ দিতে বন্ধ হয়ে গেল। একটুখানি কথা বলুন, আমি ফোনটা রেখে যাবো, ফোন দিয়ে নেক্সটটা শুরু করব। খালি অ্যাডমিনে দিতে হবে। Hello, हेलो हेलो, ma'am. My voice बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा है? हाँ बोलिए, अरुण अरुण कुमार बोल रहे हैं ना? quantizer encoder. Yes, ma'am. कौन कौन सा पार्ट उसमें है And दिखा। we have used low pass filter, sampler, quantizer, encoder, हाँ वेरी गुड। और and generative repeaters we have used for the output of the signal. आप सबसे And after that we have used हाँ बोलिए बोलिए। decoder. After implementing the input signal, then we have used decoder so that we can reconstruct the reconstruct the filter so that we can get the original output, original signal as a form of output. Original signal means your process of sampling first started with the some continuous signal as an input followed by decoder. Hello? And low pass filter. After passing low pass filter, then encoder. Before encoder, we have used quantizer also, and after encoder, then we have used decoder. Very good. Then we have Reproduce the original one. Reproduce. Yes, ma'am. Yes. And what is the difference from your input wave shape and output wave shape? Have you seen these two parts? Oh, अब CRO तो नहीं दिखा है ना? CRO आपका दोनों साइड में कैसे दिख रहा है? कैसे शेप दिख रहा है दोनों में? मैम जैसे इनपुट में आपका कंटिन्यूअस सिग्नल दिखेगा जैसे साइनोसोडियल का होता है। और जब हम लोग उसको आउटपुट में मतलब देखेंगे तो आउटपुट में हम लोग है डिस्ट्रिक्ट सिग्नल के रूप में दिखता है मैम।
जैसे वो डिस्क्रीट सिग्नल कंटिन्यूअस आपका नहीं रहता कैसा है। शेप आ रहा है? ट्रायंगुलर शेप आ रहा है क्या? शॉर्टूथ बोलते हैं उसको, शॉर्टूथ आ रहा है क्या? कैसा देखने में लग रहा है? वो सीआरओ से देखे, माने वो दिखाई? यस मैम, ट्रायंगुलर शेप में। हाँ, सटा And सटा हुआ ट्रायंगुलर triangular shape. टाइप का आ रहा है ना, मतलब यस मैम, हाँ, यस वो मैम। ट्रायंगुलर shape, आपको उस yes. टाइप का लगेगा आपका, कुछ हद तक राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का थोड़ा सा लगेगा, एक ट्रेन का जैसा, एक बाद दूसरा Yes, तीसरा yes, इस ma'am. तरह से ना। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वही सैंपल्ड हो गया उसमें। Yes, ma'am. देखिए, वो जब पूरे सेट को लीजिएगा तो मान लीजिए कई एक साइकिल ऑफ इनपुट के लिए हम एक नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको जो मिल रहा है, तो इनपुट साइकिल्स बोलेंगे और उसको बोलेंगे ट्रेन ऑफ पल्सेस, है ना, ट्रेन ऑफ सैंपल्स बोलेंगे, नॉट पल्सेस, पल्स वर्ड मत यूज कीजिए, सैंपल्स। और एक ट्रायंगल को बोलेंगे सिंगल सैंपल। ठीक है, आप समझे हैं? वेरी गुड। और ये and what you have done in your PAM, anyone can say? PAM में उसी तरह से कैसे किए हैं? बोलिए, PAM को कैसे किए हैं, क्या क्या पार्ट यूज किए हैं PAM जनरेट करने में? देख के बोलिए, देख के बोल लो तो ठीक ही बोलो, घबराइए नहीं, आपका कोई जिसको आ रहा है आराम से बोलिए, देख देख के बोलिए। Ma'am, in PAM we have used we have also used low pass filter and multiplexer modulator. पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बोलिए, स्टार्टिंग में क्या दिए? At first we have given the carrier signal, then after then we have passed through the low pass filter, then multiplexer, then modulator, then after that we can get our PAM signal in the form of sinusoidal wave. मल्टीप्लेक्सर यूज करते हुए चलते हैं। तो व्हाट इज द रोल ऑफ मल्टीप्लेक्सर हियर? आप समझे हो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर क्या काम कर रहा है? अगर नहीं, आप अगर समझे हो तो बोलिए, और एनीवन अगर समझा है तो इसको बोलिए। मल्टीप्लेक्सर, यस मैम, मल्टीप्लेक्सर मैम दो सिग्नल को कंबाइन करके, जैसे एक मान लीजिए आप कि आपका एक कंटिन्यूअस सिग्नल आ रहा और एक डिस्क्रीट सिग्नल आ रहा, वो दोनों के कंबाइन करके उसका पल्स और एम्पलीट्यूड को उसके मुताबिक मैम एक के ऊपर दूसरे को इम्पोज करके कॉम्बिनेशन को आउट। यस मैम। तो यहाँ आपके देखिए मल्टीप्लेक्सर क्या है कि व्हाट इज मल्टीप्लायर, वो मल्टीप्लायर है, वही वही तो बोल रहे हैं कि मल्टीप्लेक्सर, इसीलिए हमको लगा कि वहाँ क्या यूज है, इसीलिए हम पूछे। multiplexer is used for many to one combination. हाँ, वेरी गुड, वेरी in गुड। one channel. हाँ, मल्टीप्लायर, ठीक, वो मल्टीप्लायर ही बोले चलो। वेरी गुड। और क्या अच्छे? And ultimately in PAM output what type of pulse train you are getting? किस तरह का आपको शेप मिल रहा है वहां पे? आपका CRO में अगर दिखाया गया है तो किस तरह का शेप मिल रहा है? And what is your difference from input to output side? इनपुट कैसा दिख रहा है, आउटपुट कैसा दिख रहा है, बताइए, देख के बताइए। कोई जो जिसको आ रहा है वो बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, खोल के कॉपी खोल के देख के बताइए उसको। जिसको डीएसओ में जो सिग्नल हम दिखाए थे ना, वो सिग्नल किसका क्या डिफरेंस है वो मैडम पूछ रही है। ये वीडियो भी कॉलेज में ही बनाया गया है, नहीं बनाया पीडीएम पैम का जो है। हेलो हेलो स्टूडेंट, Ma'am, yes ma'am, देख के Ma'am, बताइए। हाँ बोलिए। it will be naturally sampled form, not in flat top sampling type. The output of PAM is in natural form. You are getting their pulses, na, at the output. Yes ma'am. In Three types of sampling we know about. First one is impulse type, second one is flat top type, and third one is natural type sampling. So in PAM we will get natural type sampling, naturally sampled signal actually.
माने जो what is its geometrical shape? It is a rectangular or Yes, ma'am. Flat Combination top. of or square. Ma'am, it will be in the form of rectangular. Yeah. Now, whenever you are looking towards this pulse, say single pulse, actually you are getting ultimately a train of pulse. मतलब कई एक pulse का एक sequence मिल रहा है ना, तो एक single pulse को अगर हम देखेंगे, उनका ऑब्जर्व करेंगे अगर, तो पल्स को स्पेसिफाई करने के लिए which one will be its width, पल्स का width क्या होगा, मतलब किस साइड को हम पल्स का width बोलेंगे और किस साइड को पल्स का एम्पलीट्यूड बोलेंगे। क्योंकि हमारा जब पल्स मॉड्यूलेशन होता है ना, तो पैम बोलते हैं, पीडब्ल्यूएम बोलते हैं, एक पीपीएम भी है। मैम हॉरिजॉन्टली जो एक्स एक्सिस पे, मैम हॉरिजॉन्टली जो एक्स एक्सिस पे होता है वो उसका विड्थ होता है, और जो उसका एम्पलीट्यूड दैट मींस उसका जो हाइट होता है, जो वोल्टेज होता है, वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। वेरी गुड, वेरी वाई गुड, एक्सिस में। वेरी गुड। हॉरिजॉन्टली उसके दो सक्सेसिव पॉइंट, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है, दैट इज विड्थ ना। वेरी गुड। आई मीन आप हाइट का स्केल हो जाएगा, अगर वोल्टेज शो कर रहा है तो वोल्ट में हो जाएगा, जबकि ये आपका टाइम में देगा। विड्थ आपका क्या करेगा, टाइम में देगा ना, एक्स एक्सिस में तो। यस मैम। तो हम इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर इसका मतलब क्या होगा कि जब भी कोई पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन करेंगे, आपका कहीं पे स्टडी कर रहे हैं, कोई बोल रहा है, कहीं लैब में देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको दिमाग में एटलीस्ट फर्स्ट एंड वेरी बेसिक आपको सोच होना चाहिए कि देयर इज सम अरेंजमेंट वेयर टाइम चेंजिंग इज डन, माने इज गोइंग टू बी डन, टाइम चेंजिंग इज डूइंग देयर। हाँ, वेयरएज जब आपको कोई बोलेगा पैम जनरेट कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग क्या सोचेंगे, अचानक हम लोग क्या सोचेंगे कि कैसा अरेंजमेंट होगा, फुली इलेक्ट्रिकली, वहां पे हमारा वोल्टेज का चेंज होगा। एम आई क्लियर? यस मैम। बेसिक आइडिया देने के लिए, मतलब एक जगह पे टाइम का चेंज, दूसरे जगह पे वोल्टेज का चेंज। सिमिलरली क्या होता है कि एक तीसरा टर्म होता है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, उसको बोलते हैं पीपीएम। पीपीएम किससे रिलेट होता है कि पहला पल्स, उसके बाद नेक्स्ट पल्स, पहला पल्स के एंड पॉइंट और नेक्स्ट पल्स का स्टार्टिंग पॉइंट का पोजीशन, इन दोनों के बीच में क्या एक दूसरे से सटा हुआ है, एक दूसरे से ओवरलैपिंग है, या एक दूसरे से सेपरेट है। और इसको क्या करते हैं कि इसका मेजरमेंट करते हैं इन टाइम स्केल, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ वन एंड अनदर। इन दोनों का मतलब वहां पे अगर एक का एंड को T1 से डिनोट कर रहे हैं, तो दूसरा शुरू को T2 कर सकते हैं, तो इट विल ऑलवेज बी डिफाइंड बाय द वैल्यू ऑफ T2 माइनस T1। दैट मीन्स क्या होगा, पीपीएम को भी जब मॉड्यूलेशन करेंगे, पीपीएम मॉड्यूलेशन जब जेनरेट करेंगे, तो वहां भी आपका रिजल्ट किस तरह का होगा, टाइम मॉड्यूलेशन होगा, टाइम का चेंज होगा। तो उस तरह का आपको अरेंजमेंट बनाना होगा। ये बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए कि इन दोनों में हम लोग टाइम चेंज कर देंगे, और पैम में क्या करेंगे, वोल्टेज चेंज करेंगे। अब टाइम चेंज या वोल्टेज चेंज किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, हमेशा आपके स्टडी जो है ये विथ रेस्पेक्ट टू द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द इंफॉर्मेशन कैरिंग सिग्नल। इंफॉर्मेशन कैरिंग सिग्नल एक अगर कंटिन्यूअस सेफ का है और इंस्टेंटेनियस है, मतलब हर टाइम के वैल्यू के लिए उसका एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा है, तो उसी रेस्पेक्ट में पैम केस में वोल्टेज चेंज होता है, और पीडब्ल्यूएम हो चाहे पीपीएम हो, वहां पे टाइम का चेंज होता है। ठीक है, मतलब एनालॉजिकल सेकेंड थर्ड केस में एनालॉजी होता है वहां पे, whereas फर्स्ट केस में क्या होता है कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल से ही इलेक्ट्रिकल का चेंज किया जाता है। दिस इज द बेसिक। हाँ, ओके, ठीक है, थैंक यू। आप अच्छा से रिकॉर्ड को बनाइए एंड प्लीज गो थ्रू दोस ऑल रिकॉर्ड्स। आप पढ़िए, देखिएगा आपको बहुत चीज क्लियर होगा। वेरी गुड।
गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैडम तो तुम लोगों को पूछे हैं जो हुआ है उसके ऊपर एक मैडम ओवरव्यू लेना चाह रहे थे और भाईजा भी हो रहा था, और हम तुम लोग को यही बोलेंगे, तुम लोग का कॉपी सबमिशन का डेट आज तक था, तो तुम लोग का कुछ प्रॉब्लम हो रहा, बहुत से स्टूडेंट हमको कॉल किया था, तो हम एक दिन एक्सटेंड कर देते इसको, हम 7 तारीख तक कर देते, और उसका मैनुअल जो मैनुअल के बारे में तुम लोग बोले थे वो हम सेंड कर दे रहे क्लास में। और माइक्रो प्रोसेसर का तुम लोग को क्या लिखना है नहीं लिखना है उसका तो कुछ मैनुअल नहीं होता है। तुम लोग हमको बोले थे फ्लो चार्ट का एक सैंपल दीजिए, फ्लो चार्ट का सैंपल भी हम दे दिए हैं, तो उसका तुम लोग बना लो। और एक बात बोलेंगे, माइक्रो प्रोसेसर में और एक थ्योरेटिकल लिखना होता है, वो होता है एक्सपेरिमेंट नंबर 1। हम जब कराए थे तुम लोगों को याद होगा, हम बोले थे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 थ्योरेटिकल है, उसको छोड़ के बाकी सब बनाओ, ठीक है। इसलिए हम सर 1 नंबर नहीं बनाना है, 1 नंबर एक थ्योरेटिकल है। एक हम जब प्रोग्राम कराए थे, प्रोग्राम स्टार्ट होता है 2 नंबर एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो इसलिए हम तुम लोगों को बोले थे कि तुम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 1 छोड़ दो, 2 नंबर से बनाओ। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 मतलब प्रोग्राम नंबर 1 नहीं, प्रोग्राम स्टार्ट होता है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से, ठीक है। और बट हम लोग एक्सपेरिमेंट 1 भी लिख लिए। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, नंबर थोड़ा इधर उधर होगा सब कुछ। सर आप जो करवाए थे वही वाला हम लोग लिखे हैं। हाँ वो कराया तो लिखना ही पड़ेगा, और दूसरा भी एक लिखना पड़ेगा, हम बोल दे रहे हैं। हाँ, स्टडी ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर किट, ये थ्योरेटिकल बेस है। इसमें तुम लोगों को क्या क्या लिखना पड़ेगा, बसेस जो है उसके बारे में तुमको लिखना पड़ेगा, सुनाई दे रहा है? हाँ, बस जो है उसका आर्किटेक्चर क्या है, पिन डायग्राम 40 पिन डायग्राम जो है वो 40 पिन डायग्राम में कौन सा पिन का क्या है फंक्शन है, और ये सब तुम लोगों को थोड़ा लिखना पड़ेगा थ्योरेटिकल। उसका भी पॉइंट हम तुम लोगों को इधर व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे, कौन सा पॉइंट। वो हो गया थ्योरेटिकल एक, और बाकी सारा प्रोग्राम। ओके सर आप डेट थोड़ा एक्सटेंड करिए सर, क्योंकि हम लोग कम्युनिकेशन सर आप बोले थे कि आप तो आज बताए सर, तो फिर हम लोग को थोड़ा लिखना में टाइम, और कल एनालॉग कम्युनिकेशन का सर टेस्ट लेंगे हम लोग का। हाँ, तो एनालॉग कम्युनिकेशन में देखो हम तुम लोग सर सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स का सर, वो हमको पता नहीं, एनालॉग कम्युनिकेशन हम लेते हैं उसका हम बोल रहे हैं। हम ऐसे भी बाकी डिपार्टमेंट की तरह हम ऐसे भी कर सकते थे कि सिर्फ पॉइंट बोल देंगे तुम लोग लिखोगे, लेकिन हम चाहते थे तुम लोग को थोड़ा हेल्प हो, इसलिए हम मैनुअल दे रहे हैं। मैनुअल हम लोग को बना हुआ है, लेकिन इधर थोड़ा पावर कट था इसलिए सुबह से नहीं भेज पाए, हम भेज देंगे उसके बाद लिखो, और इसके लिए डेट 1 डे एक्सटेंड भी कर दे रहे हैं, ठीक है। 7 तारीख तक हम सर 8 तारीख कर दीजिए सर, नहीं 8 तारीख 8 तारीख कर दीजिए सर। 8 तारीख हम मार्क्स भेज देंगे, 8 तारीख 12 बजे तक हम मार्क्स भेज देंगे, उसका जिसका मार्क्स नहीं जाएगा वो अपना रिस्पॉन्सिबल है। तो सर 8 तारीख सर आप 8 तारीख 12 बजे तक ही कर दिए सर दोपहर। अच्छा ठीक है, प्रिंसिपल मैडम बोल दे रहे हैं तो 8 तारीख 12 बजे तक हम कर देंगे, उसके बाद शाम में हम मार्क्स बिठा देंगे, ठीक है। 8 तारीख 12 बजे तक हो जाएगा ना? 8 तारीख सर आप लैब मैनुअल आज भेज दीजिएगा तो हो जाएगा सर। अरे एक एक करके बोलो, होगा कि नहीं होगा? सर आज आप लैब मैनुअल भेज दीजिए, हो जाएगा सर। अच्छा ठीक है, 8 तारीख 12 बजे तक हम टाइम दे रहे हैं, ठीक है। ओके पूछना है तो पूछो, नहीं तो क्लास करेंगे। सर आप वीडियोस अपलोड नहीं करे, उसको अपलोड कर हाँ वीडियो हम दे रहे हैं, हम YouTube में अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक दे देंगे। उस टाइम जब भी आप पढ़ाए थे तो नेटवर्क का इशू वगैरह रहता तो ज्वाइन नहीं कर पाते। वीडियो तो हम मेरे पास करा हुआ है, वो YouTube में भी है, हम YouTube लिंक दे देंगे, ठीक है। YouTube पे आप अपलोड कहाँ करें? अरे वीडियो कैसे अपलोड करेंगे, लिंक दे देंगे YouTube का। ओके थैंक यू।